नमस्कार, मैं हूं अश्विनी आपके साथ केपी न्यूज बुलेटिन में। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पाठ्य पुस्तक के बदलाव के विरोध में विभिन्न संगठनों द्वारा प्रदर्शन। पाठ्य पुस्तक पंक्ति के बाद शिक्षा विभाग अंबेडकर बसवन्ना पर पाठों का पुनर्मुद्रण करेगा। उपिनंगड़ी के गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज की 24 छात्राओं को सस्पेंड कर दिया गया। हिजबुल मुजाहिदीन का मास्टरमाइंड बेंगलुरु में गिरफ्तार। पंजाब के मनसा पहुंचे राहुल गांधी, कांग्रेस नेता और गायक सिद्धू मूसेवाला के परिवार से की मुलाकात। आरएसएस दफ्तरों को उड़ाने की धमकी देने वाला आरोपी तमिलनाडु में पकड़ा गया। अब समाचार विस्तार से। आज बीदर शहर में विभिन्न संगठनों ने पाठ्य पुस्तकों में पाठों को बदलने को लेकर शहर के अंबेडकर चौक से प्रदर्शन रैली निकाली, जिसमें शिक्षण मंत्री बीसी नागेश और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर दलित संघर्ष समिति द्वारा मुख्यमंत्री के नाम पर एक ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग सरकार के सामने रखी गई। इस अवसर पर बाबू पासवान, उमेश सोलनकर, मन्नान सेठ, वही लखन, राजकुमार मुलभारती, निजामुद्दीन सहित अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। इडी राज्याद्यंत ಕೋಮು ಶಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೋರಾಟ, ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ವತಿಯಿಂದ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ದೇಶದಾಗ ಬಾಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಬಾಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ಈ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಓದಬೇಕಾಗಿದೆ। ಸುಳ್ಳು ಇತಿಹಾಸ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಸುಳ್ಳು ಇತಿಹಾಸ ನಾವು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ। ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪನವರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು। ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರತೀರ್ಥನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕ ಯಾವ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಆ ದುಡ್ಡು ಆ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕು। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಸಮಾಜ ಮುಖಂಡರು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಜನರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು। ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯರು 6 ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಈ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ಈ ಸಮಿತಿ ರದ್ದು ಮಾಡಿದಾರ, ಆದರೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರ। ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿತೀರಿ, ನೀವು ಜನ ಜಾಗೃತ ಆಗ್ಲತ್ತದ। ನೀವು ಕೇವಲ ಜನರಿಗೆ ದೇವ್ರ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿ ನೀವು ಅಧಿಕಾರನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಜನರ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರು ಹೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಮಂದಿರದಾಗ ಬೀಜಿ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು। ಇವತ್ತು ಜನರು ಇವತ್ತು ಜನರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ, ಇವತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಬೆಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ರೇಷನ್ ಬೆಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟ್ಯದ। ಇವತ್ತು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗಿದೋಗ್ಯಾವ, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗಿದೋಗ್ಯಾವ, ಎಲ್ಲ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ। ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ಈ ಜನರಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನ ತಿನ್ನಿಸಿ ನೀವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದು ನಡೆದಿಲ್ಲ। ಜನ ಒಂದೇಳು ಜಾಗೃತ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ದೇಶದಾಗ ಸಿಗ್ಲಕ್ಕ ಹುಡುಗ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ವತಿಯಿಂದ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಈ ರ್ಯಾಲಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ। ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಂತ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೂಡಲೇ ಈ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹಿಂದಿರುವಂಥ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಈ ರಾಜ್ಯದ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರತೀರ್ಥಕ್ಕಂಥ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ RSS ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದವನು, ಇವನೊಬ್ಬ ಏನು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞನಲ್ಲ, ಇವನೇನು ಮಹಾ ಪಂಡಿತನೂ ಅಲ್ಲ, ಇವನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರ ಇವನನ್ನು ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ತಪ್ಪು। ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ರಚನೆ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತನಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞನಾಗಿರಬೇಕು। ಈ ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಂಘ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಎಲ್ಲ 6 ಜನರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಲ್ಲ, ಇವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ತಜ್ಞರಷ್ಟೇ। ಈ ಜಾತಿಯ ವಿಷಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತು RSS ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ತಲೆಯೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೇರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿನಾಕಾರಣ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತೀರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಕೂಡಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರೇ, ನೀವು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೀದರ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಕೂಡ ಬಸವಣ್ಣನ ಅನುಯಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಬುದ್ಧನ ಅನುಯಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅನುಯಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ। ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ನೈತಿಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, ಫುಲೆ, ಶಾವು, ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು
ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಚಕ್ರತೀರ್ಥ ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರತೀರ್ಥರ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಡೆಮೊಲಿಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಳೆಯ ಕಮಿಟಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳ ಹೋರಾಟದ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಟೇಕರ್, जिलाध्यक्षರು, भारतीय विद्यार्थी संघ बीदर। सरकार की वजह से जो नया डिवीज़न कमेटी बनाई गई है उसके ज़रिए महान हीरो जैसे टीपू सुल्तान है, जिन्होंने इस देश के लिए पहले स्वतंत्र सेनानी हैं, जिन्होंने अपनी जान दी, अपने बेटों की जान दी। और हमारे यहाँ के लॉर्ड बसवेश्वर जो हैं, जो 12वीं शताब्दी के सोशल रिफॉर्मर थे, उनकी इतिहास को भी के साथ छेड़छाड़ी की जा रही है। और बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने हमारे इस देश को एक अजीम संविधान दिया, उनके इतिहास के साथ भी छेड़छाड़ी की जा रही है। इनके तमाम लोगों के निकाल करके ऐसे लोगों का हिस्ट्री, ऐसे लोगों की तारीख़ उसमें बुक्स में डाला जा रहा है जिनका हमारे देश के स्वतंत्रता के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, बल्कि वो लोग ब्रिटिशर्स के साथ, अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे और हमेशा उनके लिए ही काम किया करते थे। कभी उन्होंने किसी आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। ऐसे लोगों का अंदर सबक डाल रहे हैं। और ऐसे लोग जो आरएसएस के विचारधारा के, जो कौमवादी विचारधारा के लोग हैं, उनकी हिस्ट्री डाली जा रही है। और हमारे बच्चे जो हमारे इस देश का, हर कौम का भविष्य होते हैं, उनके जहन में बचपन से नफ़रत का बीज बोया जा रहा है। हम इसका खंडन करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं और कर्नाटक के मुख्यमंत्री से गुजारिश करते हैं इसको फ़ौरन बर्खास्त करें और जो कुछ भी नए सबक लाए जा रहे हैं उसको कैंसिल करें। जो पहले थे, जो भाईचारगी के लिए, अमन के लिए जो इतिहास थे, उसको डाला जाए। आपका नाम? अब्दुल मन्नान सेठ, संविधान समिति अध्यक्ष, बीदर। पाठ्य पुस्तक पंक्ति के बाद शिक्षा विभाग अम्बेडकर बसवण्णा पर पाठों का पुनर्मुद्रण करेगा। विवादास्पद पाठ्य पुस्तक समीक्षा समिति के खिलाफ सार्वजनिक आक्रोश के बाद शिक्षा विभाग ने बरगुरु रामचंद्रप्पा समिति द्वारा अनुशंसित सामग्री के साथ अम्बेडकर और बसवण्णा पर पाठों को फिर से छापने का फैसला किया है। बीसी नागेश ने कहा, हम आलोचनाओं के लिए खुले हैं और हम अम्बेडकर के पाठ में भाग को सुधारेंगे और अम्बेडकर संविधान के निर्माता है, इसको जोड़ देंगे। जहां तक बसवण्णा के पाठों का संबंध है, हम बरगुरु रामचंद्रप्पा की समिति के अनुसार इसी सामग्री को बहाल करेंगे। हम जल्द ही पिछली और वर्तमान पाठ्य पुस्तकों को सार्वजनिक करेंगे ताकि लोगों को पता चले कि दोनों समितियों द्वारा क्या छोड़ा और जोड़ा गया है। उन्होंने कहा, केवल इतना ही नहीं, संशोधित की गई सामग्री में आने वाली किसी भी आपत्ति को भी तदनुसार संबोधित किया जाएगा। छात्रों को 17 से 20 जून के बीच पाठ्य पुस्तक प्राप्त होगी। बार बार चेतावनी के बावजूद हिजाब पहनने पर उप्पीनंगडी के गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज की 24 छात्राओं को शनिवार तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। पिछले हफ्ते इसी तरह के व्यवहार को दोहराए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। मैंगलोर यूनिवर्सिटी से संबंध इसी कॉलेज ने हिजाब पहनकर क्लास करने वाली 4 लड़कियों को सस्पेंड कर दिया था। कर्नाटक राज्य के गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र के कार्यालय ने कहा कि बेंगलुरु में जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के मास्टरमाइंड और कमांडर तालिब हुसैन को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को पंजाब के मानसा जिले में दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के घर गए और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। एक पार्टी नेता ने बताया कि मंगलवार सुबह चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर उतरने के बाद राहुल गांधी सीधे मूसेवाला के पैतृक गांव मूसा पहुंचे और उनके परिवार के साथ लगभग 50 मिनट का समय गुजारा। उन्होंने मूसेवाला को पुष्पांजलि भी अर्पित की। पंजाब कांग्रेस के प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिन्हा बाजवा और पूर्व उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी सहित कई अन्य कांग्रेस नेता भी राहुल गांधी के साथ मूसेवाला के गांव गए। राहुल के दौरे के मद्देनजर मूसेवाला के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। 29 मई की शाम पंजाब के मानसा जिले में अज्ञात हमलावरों ने मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दफ्तरों को उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी
राज मोहम्मद को हिरासत में ले लिया गया है। राज मोहम्मद की गिरफ्तारी तमिलनाडु के पुदुकुड़ी से हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस की सूचना पर आरोपी को एटीएस ने पकड़ा। आरोपी ने लखनऊ, उन्नाव समेत अन्य शहरों में स्थित आरएसएस दफ्तरों को उड़ाने की धमकी दी थी। लखनऊ पुलिस ने बताया कि जिस नंबर का इस्तेमाल व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजने के लिए किया गया था, उसे साइबर सेल की मदद से ट्रेस किया गया। इसके बाद पुलिस ने इसके बारे में तमिलनाडु पुलिस को जानकारी दी और कार्रवाई का अनुरोध किया। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें, kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876, 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स
04024565786 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बिदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं देश और दुनिया के अन्य समाचार। नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद के बारे में की गई टिप्पणी का मामला तुल पकड़ रहा है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा को सुरक्षा दी है। उन्हें ये सुरक्षा तमाम तरह की धमकियों के मिलने के बाद दी गई है। इस बारे में नई दिल्ली के डीसीपी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा, नुपुर शर्मा को सुरक्षा मुहैया कराया गया है। सुरक्षा कारणों से अधिक जानकारी साझा नहीं कर सकता हूं। राज्यसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी नेताओं के साथ राज्यसभा चुनाव पर विस्तार से चर्चा हुई है। राज्यसभा की 6ठी सीट के लिए हमारे पास 32 वोट हैं। बचे हुए वोट हमें मिल जाएंगे। रामदास अठावले ने कहा कि बहुजन विकास अघाड़ी और उनके निर्दलीय विधायक हमारे साथ आने को तैयार हैं। सपा और एमआईएम शायद वोट ना करें, जीत हमारी ही होगी। वही इस मामले में बीजेपी नेता और विधान परिषद के प्रतिपक्ष नेता प्रवीण दरेकर ने कहा कि पार्टी का उम्मीदवार जीतने वाला है, इसलिए हमने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। प्रवीण दरेकर ने कहा कि आंकड़े हमारे पास है, अभी आपको नहीं बताएंगे कि कैसे जीतेंगे। एमवीए का समर्थन करने वाले कुछ निर्दलीय विधायक नाराज हैं। शिवसेना ने अपने विधायकों को रिसोर्ट में रखकर अपने ही विधायकों का अपमान किया है। 3 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक पर शिवसेना को भरोसा नहीं है। बीजेपी का एक भी विधायक टूटेगा नहीं। आपको बता दें कि जनपद मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा क्षेत्र के दर्जनों दुकान स्वामियों ने सिविल लाइन स्थित एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र मुगलपुरा पुलिस के खिलाफ दर्ज कराया है। दर्ज शिकायत पत्र में आरोप है कि मुगलापुर थाना क्षेत्र की पुलिस जबरन रात 10 बजे उनकी दुकानें बंद करा रही है, जिसको लेकर दुकान स्वामी काफी परेशान हैं
एसएसपी को दिए गए शिकायती पत्र में कहा गया है कि उनकी दुकान बंद कराने का समय बढ़ाया जाए ताकि वह सभी अपनी दुकानदारी अच्छे से कर सकें। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। यहाँ पे आने का कारण यही है कि पिछले एक हफ्ते से हमारी जो इंदिरा चौक के स्ट्रीट मार्केट है वो सब बंद कराई जा रही है 10 बजे से, 10:30 बजे से बंद करा देते हैं। मुगलपुरा क्षेत्र में जो लगता है। कौन बंद करा देते हैं? मुगलपुरा क्षेत्र के पुलिस वाले। क्यों बंद करा रहे हैं? वो बताते हैं कि एसएसपी साहब का आदेश है ऊपर से और इस वजह से वो बंद करा देते हैं। अब उधर मार्केट का हाल ये है कि 10 बजे से ही काम स्टार्ट होता है। आजकल गर्मियों का टाइम है, 9:30 बजे लोग नमाज से निपटते हैं ईशा की, तो फिर उसके बाद ही खाने पीने के लिए निकलते हैं। 10 साढ़े 10 बज जाते हैं ऐसे ही गर्मियों में एकदम, और वो मार्केट ही रात की चलती है, तो इस वजह से सबका। किस तरह की मार्केट है वो मार्केट जो है खाने पीने की है। वहाँ पे गुलशन करीम है, मिठाई की दुकानें हैं, दूध की दुकानें हैं, जूस की दुकानें हैं, चाय की दुकानें हैं, खाने की मार्केट है वो पूरी। अब खाने का मसला एक ऐसा भी होता है कि एक दिन अगर बंद हो जाती है, अगले दिन वो खाना ख़राब हो जाता है, एक परेशानी आती है। दूसरा, हमारे साथ मज़दूर लोग जुड़े हुए हैं। अगर हम 10 बजे हम अपना बंद भी कर देते हैं तो उनकी रोज़ी रोटी का बहुत मसला होता है। जो लोग रात को वहाँ पे लेबर काम करती है, उनकी वो रोज़ हमारी वजह से वो भी साथ में बेरोज़गार हो रहे हैं हमारे साथ साथ। अगर हम एक बार को व्यापारी सब लोग जो मालिक हैं वो कवर कर भी लें तो हमारा जो साथ में स्टाफ जुड़ा हुआ है वो बेचारा बेरोज़गार हो रहा है। महंगाई का टाइम है, तो हमारी कोशिश यहाँ पे यही है कि एसएसपी साहब हमारी दरख्वास्त को सुने। थाने पे बात करी थी तो उन्होंने हमसे यही कहा कि बस ऊपर से आदेश हैं। तो कौन से अधिकारी से मिलने आए? आज हम एसएसपी साहब से मिलने आए हैं, हेमंत सर से। जी, क्या चाहते हैं आप इसमें? हम इसमें यही चाहते हैं कि हमारा रात का टाइम बढ़ा दिया जाए, जो भी मुनासिब टाइम हो, कम से कम 12 साढ़े 12 बजे तक हमारी शॉप्स को खोलने दिया जाए, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इसमें। और साथ साथ में जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशानी से जुड़े हुए हैं। कोई रिटन नोटिस नहीं है, कोई रिटन नोटिस नहीं है इसका कि जो है बंद करा टाइम पे पूछते हैं। कोई लिखित में इसका कोई आदेश हमें नहीं दिखाया गया है, ना हमारे पास कोई नोटिस आया था पहले, सिर्फ आए थे और एकदम से बंद कराना स्टार्ट कर दिया। निमंत्रण से लौट रहे वीरेंद्र पासी पर करिया चौकी टोल प्लाजा के पास बदमाशों ने किया रॉड से हमला। मामला रात 11:30 का है। करिया चौकी सलोन थाने के अंतर्गत आती है। वीरेंद्र पासी प्रतापगढ़ के रहने वाले बदमाशों ने करैया चौकी से चंद दूरी पर घटना को दिया अंजाम। सलोन रायबरेली। साथियों, हम आप ले लिए गाड़ी ना, ये गाड़ी ले लिया। साथियों, अभी हम इस समय करहिया टोल के पास खड़े हैं और बाइक से हम लोग एक बारात से लौटे हुए थे। किसी अज्ञात लोगों द्वारा जो है हमारे ऊपर लोहे की रॉड से हमला किया गया है। 3 लोग बाइक से थे और हम लोग भी बाइक से आ रहे थे। हमारे ऊपर काफ़ी गंभीर तरीके से जो है प्रहार किया गया है, पूरा सर फट गया है। और इस समय हम करहिया टोल के पास में हैं। रात्रि के 12:10 बचे हैं। इसका थाना सलोन पड़ेगा, जनपद रायबरेली। और कौन लोग मारे हैं यह जो है जानकारी नहीं है। और किसी से किसी प्रकार के कोई विवाद भी नहीं था कि रात को हम लोगों का किसी से कोई विवाद हुआ हो, विवाद की वजह से इस प्रकार से हमला किया गया हो। लेकिन यह कहीं न कहीं से जो है कौन लोग थे ये नहीं पता है। अफगानिस्तान पर कट्टरपंथी संगठन तालिबान के नियंत्रण के बाद पहली बार भारतीय प्रतिनिधिमंडल की काबुल यात्रा पर अमेरिका ने कहा कि तालिबान शासन के साथ संबंध को लेकर भारत के अपने हित हैं। तालिबान ने पिछले साल अफगानिस्तान को अपने कब्जे में लिया था। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान के लिए वरिष्ठ राजनयिक जेपी सिन्हा के नेतृत्व में एक दल पिछले सप्ताह अफगानिस्तान की यात्रा पर गया था। वहां उसने तालिबान के वरिष्ठ सदस्यों से मुलाकात की और भारत की ओर से भेजी गई सहायता के बारे में उनसे चर्चा की। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। सोनाक्षी सिन्हा और जाहिर इकबाल ने खुल्लम खुल्ला किया प्यार का इजहार। क्या दोनों करने वाले हैं शादी? अब समाचार खेल जगत के। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 सीरीज से पहले बुरे फंसे कप्तान KL राहुल।
आखिर में समाचार बाजार के। HDFC का लोन हुआ और महंगा, 7 दिन में दूसरी बार ग्राहकों को दिया झटका। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। पाठ्य पुस्तक के बदलाव के विरोध में विभिन्न संगठनों द्वारा प्रदर्शन। पाठ्य पुस्तक पंक्ति के बाद शिक्षा विभाग अंबेडकर बसवन्ना पर पाठों का पुनर्मुद्रण करेगा। उपिनंगड़ी के गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज की 24 छात्राओं को सस्पेंड कर दिया गया। हिजबुल मुजाहिदीन का मास्टरमाइंड बेंगलुरु में गिरफ्तार। पंजाब के मनसा पहुंचे राहुल गांधी, कांग्रेस नेता और गायक सिद्धू मूसेवाला के परिवार से की मुलाकात। RSS दफ्तरों को उड़ाने की धमकी देने वाला आरोपी तमिलनाडु में पकड़ा गया। केपी न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।